Good morning, dear students. Now today we are going to learn about the October Revolution. So children, last video lecture I was discussing about the February Revolution and its after effects also. So these were the main ground which led to the October Revolution. Let us revise once again what were the reasons which led to the October Revolution, that is the after effects of the February Revolution. Now, first of all, I told you that in order to control the discontented provisional government, they took the following steps. What they did? Number one, they controlled workers by arresting leaders. Number two, the demonstrations which were staged by the Bolsheviks in July 1917 were suppressed sternly. After that, many Bolshevik leaders, they had to flee the country, they have to hide themselves in the countryside. Now, what was the situation in the countryside? That is in the rural areas. Peasants and the social revolutionary leaders, they pressed for the redistribution of land. After that, land committee was formed. I already told you, for the distribution of the land committee was formed. Third point, peasants, they seized the land between July and September 1917, and this all provided फर्टाइल ग्राउंड फॉर द अक्टूबर रेवोल्यूशन. ये सारे चीज़ें जो है इनकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, द रेवोल्यूशन विच वॉज स्टार्टेड बाय द बॉल्शेविक. नाउ साइड बाय साइड द वर्कर्स मूवमेंट ऑल्सो ग्रू. ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज विच वर इन February revolution, they started now questioning the industries. Already I told you in the February revolution that these trade unions and the factory committees, they started questioning industrialists. Soldiers committee were formed in the army also, and in June about 500 soldiers, they sent representatives for India Congress of Soviets. Now provisional government was not helping with this. Why? Because all this was seen as a growing influence of the Bolsheviks to take power against provisional government. So this was the main causes of the October Revolution. Now I am going to deal further, that is the revolution of October 1917. Okay, what was the main cause of how the planning and execution of this October revolution took place. Now, as in the February revolution, what we have seen, that there was a conflict between the provisional government and the Bolshevik governments. Okay, Bolshevik governments, they were against the provisional government. They never wanted the provisional government to be there. So these conflicts, these rift between these two governments, they started growing up, and the attitude of the provisional government, it feared Lenin that they must set up dictatorship. So Lenin was afraid that these provisional government are going to set up a dictatorship rule over here. So with Bolshevik supporters in September, Lenin, what he did in September, he began discussion for an uprising against the government, provisional government के against. Lenin ने अब सोचा कि अब हमें जो इसके against protest करना, uprising करना शुरू कर देना चाहिए. So Bolshevik के जो supporters थे, कौन कौन थे? आर्मी आ गई थी सपोर्ट में, सोवियट्स that is consuls आ गए थे, फैक्ट्री वर्कर्स आ गए थे. तो अब लेनिन ने स्टार्ट किया प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लानिंग करना. ठीक है, अब लेनिन की प्लानिंग क्या थी? लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत को, काउंसिल को परसुएड किया. ठीक है, और बोल्शेविक पार्टी जो है वो अब एग्री कर गई. दोनों पेट्रोग्राड सोवियत as well as Bolshevik party, they both agreed to a socialist seizure of power, that they are going to seize the power of the provisional government on a socialist background. दैट इज़ अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. फिर से बता रही हूँ कि लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को एंड बोल्शेविक पार्टी को परसुएड किया कि अब सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करो. ठीक है, दिस वॉज कॉल्ड एज अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. इसके लिए मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी को अपॉइंट किया अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, और सीजर मीन्स जो है पावर को अपने हाथ में लेने के लिए उसने मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी फॉर्म की. और अब उसने क्या किया, अपराइजिंग की डेट कि कब जो है हमें अटैक करना है या कब हमें एक्शन लेना है, उसको उन्होंने सीक्रेट रखा. उसके बाद क्या हुआ, अपराइजिंग जो है स्टार्ट हुई ऑन 24 अक्टूबर. ठीक है,
तो ये लेनिन की पूरी प्लानिंग थी कि कैसे करना है हमको। कैसे किया उन्होंने, उसने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बोल्शेविक पार्टी को एग्री किया कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करे। उसने मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी फॉर्म की अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, सीजर को फॉर द सीजर ऑफ द पावर। और डेट, जो अपराइजिंग की डेट थी, उसने सीक्रेट रखी, किसी को बताई नहीं। उसके बाद क्या हुआ था, 16 अक्टूबर 1917 को अब लेनिन ने क्या किया, पेट्रोग्रेड सोवियत को परसुएड किया, बोल्शेविक पार्टी को परसुएड किया टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। ठीक है। और उसके बाद जो है 24 अक्टूबर को अब जो प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, क्रेनेस्की, KERENESKI, क्रेनेस्की। वंस अगेन मैं बता रही हूँ, अब क्या हुआ 24 अक्टूबर को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो क्रेनेस्की था उसको पता लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए उसने ट्रूप्स बुला लिए। ड्रॉन में जो है क्या हुआ, मिलिट्री जो है मैन, मॉर्निंग के वक्त मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट के लॉयल थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लॉयल विश्वसनीय जो मिलिट्री आर्मी के लोग थे, उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज कर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस थे, वो भी जो है ये जो गवर्नमेंट के फेवर में थे, उन्होंने उसको भी अपने अंडर में ले लिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, ऑल बट ऑल whatever the steps was taken by the Kerensky people was in vain। क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बोल्शेविक्स एंड जो पेट्रोग्रेड सोवियत्स थे, इन्होंने क्या किया कि प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स आर सेंट टू, हाँ, उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक्स जो थे, इन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशन जो कमेटी फॉर्म की थी। वंस अगेन ये तो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट के स्टेप थे अंडर प्राइम मिनिस्टर क्रेनेस्की। उसने मिलिट्री बुलाई, बोल्शेविक्स के बिल्डिंग को सीज किया, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसर्स को भी जो है उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो पेट्रोग्रेड सोवियत और जो बोल्शेविक्स की रिवॉल्यूशन कमेटी फॉर्म की थी, मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी, उन्होंने ऑर्डर किया, क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने अंडर में लो, सीज करो, एंड उनके मिनिस्टर्स को, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे, उनको अरेस्ट करो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो शिप औरोरा थी, वो जो रिवर नेवे वाज इज़ अ वेरी ह्यूज रिवर, अ वेरी लार्ज रिवर। उन्होंने क्या किया, वहाँ से रिवर शिप औरोरा को बुलाया और विंटर पैलेस किसका था, किंग का पैलेस था, उस पर उन्होंने बॉम्ब शेलिंग स्टार्ट कर दी। और कई अदर वेसल्स को भी वहाँ पे बुलाया गया, जिसने कि मिलिट्री के जो एरियाज थे उसको अपने अंडर में ले लिए थे। ठीक है। उसके बाद रात तक सिटी टोटली जो है इस रिवॉल्यूशन, मिलिट्री रिवॉल्यूशन के कमेटी के अंडर में आ गई थी। उसके साथ साथ जो है दूसरी जगह में भी अपराइजिंग देखने को मिली और हैवी फाइटिंग हुई। ठीक है। हैवी फाइटिंग जो है किसके बीच में हुई थी, वंस अगेन बोल्शेविक्स एक्शन जो है उसको अप्रूवल जो मिलिट्री सोवियत और ऑल रशियन कांग्रेस ने पेट्रोग्रेड में दे दी थी। ठीक है। अब इनके साथ ये भी आ गए थे और इसके लिए फाइट हुई मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक ने क्या किया था, मॉस्को पेट्रोग्रेड सिटी को अपने अंडर में ले लिया था। तो इस तरह से ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुआ था इन अक्टूबर रेवोल्यूशन।